मन की बात प्रोग्रामुक इलाकई जबानन मं तर्जम यी दोबारा रात संज 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारवी स्टेशनों पर नशर करन। याद थयो आतवार 30 अगस्त सुबह 10 बजे मन की बात। Dear friends, welcome. Sheikh Bashir with a topic from class 9th, subject mathematics. The topic is again area of parallelograms and the triangles. Earlier we have learned some concepts, that is we have learned how to calculate the area of rectangle, how to calculate the area of parallelogram, the formula that we use to calculate the area of parallelogram, and how to calculate the area of two types of triangles. Not two types of triangles, basically two triangles of the type. Case 1 where the altitude lies inside the triangle, and case 2 where the altitude lies outside the triangle. And one more concept that we have learnt earlier, that is diagonal divides a parallelogram into two triangles of equal area. These are the concepts which we have already learned in this chapter. So today we are going to learn some more concepts. The first concept that we are going to learn today is the median divides a triangle into two triangles of equal area. That is, if you have a triangle, for example, if you have a triangle like this is a triangle, let us name this triangle P, Q and R. So median means a line segment which you draw from one vertex to midpoint of the opposite side. Yes. So let us suppose that this is the midpoint, this T is the midpoint of side RQ, and we join PT. So this is PT is the median, we call this median. You might be knowing this thing, we call this median. Actually what we are going to learn, what we are going to prove, we are going to prove that this PT divides the triangle PQR into two triangles of equal area. That is, the area of this very triangle is equal to the area of this very triangle. This thing we have to prove. So how can we prove this? बिल्कुल this is easy, ये बिल्कुल easy है, आप घबराइए मत, आराम से आप इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आल्टीट्यूड हम ड्रा करेंगे, यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ S, ये आप याद रखिएगा। This is actually why I draw the altitude, because whenever we have to deal with the area of a triangle, we should know the altitude, what actually the altitude of the triangle is. Now we have to prove that area of PRT is equal to area of PTQ. This thing we have to prove. But how can we prove this? You can prove it easily, but I will just give some hints here which will help you to prove this thing. We know that, हम ऐसे लिख सकते हैं, we know that RT जो है, RT is equal to TQ. Why? जो RT है is equal to TQ. Why? Because T is the midpoint of RQ. हम इसे लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं T is midpoint. Simply T is midpoint. तो क्या करेंगे हम, अब दोनों साइड से हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ऐसे 1/2 इंटू TQ. कोई फर्क नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि ये इक्वलिटी है, इक्वलिटी को दोनों साइड से आप क्या भी करेंगे, मल्टीप्लाई कुछ चीज करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड जीरो के बगैर कुछ भी करेंगे तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई किया है, तो अब दोनों साइड से मैं क्या करूंगा, 1/2 PT। अब मैं PS जो आल्टीट्यूड इस ट्रायंगल का है, ट्रायंगल PRQ का जो आल्टीट्यूड है, यही PS मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड से, लाइक दिस 1/2 इंटू TQ इंटू PS। तो अभी क्या था हमारे पास, ये PT इज इक्वल टू TQ, क्योंकि ये सॉरी ये RT, P नॉट PT, इट इज RT, it is RT. So it is RT. RT is equal to TQ because T is the midpoint, and we multiplied both sides by 1/2. Later we multiplied both sides by PS. So what actually this? Let us observe what is this. It is 1/2 RT into PS. If you remember, this is the area of triangle PRT whose altitude lies outside, which is PS.
So we can write this is area of triangle PRT, PRT, which is equal to 1 by 2 TQ into PS, 1 by 2 TQ, TQ into PS. So this is the area of triangle PTQ. ये PTQ ट्रायंगल का एरिया है, तो हम लिख सकते हैं इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PTQ. सो इस तरीके से हमने प्रूव किया है जो मीडियन है, मीडियन एक ट्रायंगल को डिवाइड करता है इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. तो दिस वाज अ रिजल्ट विच वी हैव प्रूव्ड. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न some more concepts like this. The main concept in this topic, that is figures on the same base between the same parallels. इससे पहले हम figures on the same base between the same parallels के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. थोड़ा मैं आपको यहां पे बताऊं कि parallel lines क्या होते हैं. आपको पता भी है parallel lines क्या होते हैं. When you draw two lines, if the two lines never intersect, अगर वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उन लाइन्स को हम पैरेलल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ड्रा लाइक दिस, लेट अस सपोज दीज आर टू लाइन सेगमेंट्स AB and CD. These are two line segments. If these line segments never meet each other, or simply if the distance between these two line segments at different places is same, we can say that these two lines are parallel. These two lines are, so you know about this. Now, figures on the same base between the same parallels, what actually it mean? I have a shape, a chart with me. You can observe it. You can observe it easily. What is this actually? If you remember here, what you are seeing, two triangles and a type of trapezium. But अगर आप गौर से देखेंगे TURS, ये वाला, ये TURS, दिस इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम. और PQRS, दिस इज वन मोर पैरेललोग्राम. लेकिन इन दोनों पैरेललोग्राम्स की जो बेस है दैट इज SR, वो कॉमन है. इनकी जो बेस है वो कॉमन है. और ये साइड जो है, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम्स में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. TU जो है वो SR के पैरेलल है और PQ जो है वो SR के पैरेलल है. और ये सिर्फ लाई करते हैं बिटवीन द पैरेलल्स, यानी ये दोनों जो है PU और SR ये पैरेलल लाइंस है. तो ये दो पैरेललोग्राम्स है जिनको हम कह सकते हैं विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. यानी पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम TURS आर टू पैरेललोग्राम्स विच आर ऑन सेम बेस SR, जो इनकी बेस है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दैट इज PU इज पैरेलल टू SR. तो ये एक तरीका है. तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर हम इसको ड्रा कर रहे हैं. और दूसरा तरीका आपके पास भी हो सकता है. आपके पास अभी मैंने एक वे आपको दिखाया है, इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. अगर आप यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं और कोई क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है. लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे यहां पर EFCB, like this, EFCB, this is actually a parallelogram. और यहां पे देखेंगे ADCB, या ऐसे पढ़ेंगे ABCD, this is again a parallelogram. तो ये दोनों जो पैरेललोग्राम्स है इनकी जो बेस है BC है और ये बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई करते हैं, दैट इज AF which is parallel to BC. तो इस तरीके से भी हो सकते हैं आपके पास. सो दिस इज वन मोर वे in which we may have two parallelograms on the same base and between the same parallels. अब इनका क्या फायदा है यहां पे, इनकी क्या जरूरत है यहां पे, हम वो चीज सीखने जा रहे हैं. तो इससे पहले यहां पर इस चीज को मैं रब कर रहा हूं क्योंकि पैरेलल लाइंस के बारे में आपको पहले से ही जानकारी है. तो क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले हम यहां पे ये चीज करेंगे, एक पैरेललोग्राम हम ड्रा कर रहे हैं. यहां पर एक पैरेललोग्राम ड्रा कर रहे हैं, तो और एक पैरेललोग्राम इसके साथ हम ड्रा कर रहे हैं. इसी तरीके से इसको हम प्रोड्यूस करेंगे आगे तक. सो लेट अस नेम दिस वेरी पैरेललोग्राम A, B, C and D. So let us name this point E and this point as F. Now these are the two parallelograms, that is ABCD and EDCF, which are on the same base DC
and between the same parallels, that is AF is parallel to DC. Now, do you know the area of these two parallelograms are equal? इनका जो एरिया होगा वो डेफिनेटली इक्वल होगा. तो अब ये चीज हमने प्रूव करना है कि क्या इनका एरिया बिल्कुल इक्वल है या नहीं है. तो आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकालते हैं. उसके लिए जो फार्मूला है दैट इज बेस इनटू आल्टीट्यूड. इसका मतलब है पहले हमने कहीं पे आल्टीट्यूड ड्रा करना है. तो ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है इसको क्या करेंगे हम यहां पे आल्टीट्यूड ड्रा करेंगे. आप कहीं पे भी आल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हो. आल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर which is drawn from some aerial point, from the vertex, we can say it vertex. तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ये दोनों पैरेललोग्राम्स का आल्टीट्यूड बना हमारे पास. तो let us name this point as T. Let us name this point as T. And no need to write H simply here. We can write it ET as altitude. Now, what we have to know, we have to know if the area of these two parallelograms is equal. So first we will know the area, would like to know the area of parallelogram ADCB. तो हम यहाँ पे लिखेंगे area of parallelogram ADCB. तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी आप क्या कर रहे थे जब आप मैथमेटिकल में शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे थे ट्रायंगल. ऐसे सपोज आपने लिखना है ट्रायंगल ABC, तो इस ABC के आगे आप ट्रायंगल लिख सकते हैं. लेकिन यहां पर एरिया कंसेप्ट में आप AR लिख सकते हैं और ब्रैक पैरेंथेसिस आप ओपन कर सकते हैं. उनमें आप उस फिगर के जो वर्ड जितने वर्ड्स हैं उनके नाम आप लिखेंगे तो ये खुद ब खुद हमें पता चलेगा कि इसका मतलब है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है. तो ये चीज यहां पे मैंने लाजमी समझा है आपको बताऊं. आपको पता होगा इस बारे में, फिर भी मैं आपको याद ध्यान देता हूं यहां पे. तो अभी एरिया ऑफ ADCB जिसे पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम का एरिया जो है हमने पिछले क्लास में, इससे पहले जो हमने क्लास उसमें डिस्कस उसमें सीखा है कि एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है दैट इज बेस इनटू आल्टीट्यूड या बेस इनटू हाइट. तो हम ये कहेंगे यहां पे बेस इसकी जो है दैट इज DC इनटू हाइट जो है दैट इज ET. इसको आप 1 नाम दीजिए. ये इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया है. तो इसके बाद क्या करेंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EDCF के बारे में हम अब जानकारी हासिल करेंगे. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EDC और F. आपको पता है इस पैरेललोग्राम की बेस भी DC है और आल्टीट्यूड जो है वो ET है. तो हम ये लिखेंगे यहां पे DC इंटू ET. ये दूसरा हमारा बन गया. तो अगर आप देखेंगे एरिया पैरेललोग्राम ADCB विच इज DC इंटू ET और एरिया पैरेललोग्राम EDCF विच इज DC, दिस इज DC विच इज DC इंटू ET. तो दोनों सूरत में आप देखेंगे ये सेम है. तो इसका मतलब है हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EDCF. तो ये दोनों बराबर है. इसका मतलब है जो parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. यानी अगर आपके पास आप दो पैरेललोग्राम्स हैं जिनकी बेस बिल्कुल एक ही है और वो बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई करते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो बराबर होता है एरिया. उसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. आप ऐसे ही कह सकते हैं कि इनका जो एरिया है वो बराबर है. जैसे यहां पे आप अगर देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCB का जो होगा वो बराबर होगा एरिया पैरेललोग्राम EFC के बराबर होगा. इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी आपको ये चीज नजर आएगी. एरिया पैरेललोग्राम PQRS का जो एरिया होगा वो होगा बराबर एरिया पैरेललोग्राम TURS. तो इस तरीके से ये चीज हमने प्रूव किया है. तो अब ये था पैरेललोग्राम्स, two parallelograms on the same base and between the same parallels. Now there are more figures which may be on same base and between the same parallels. लेकिन in this chapter इसमें हम क्या कुछ सीखने जा रहे हैं. We are going to learn here the figures only, the parallelograms on the same base between the same parallels, a parallelogram and a triangle on the same base between the same parallels, and two triangles on the same base between the same parallels, and the relation in terms of area between these figures. तो इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे हम
अभी हमने parallelograms on the same base। अब यहां पे क्या करेंगे, एक parallelogram और एक ट्रायंगल के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल इस तरीके से होगा, मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं, इसको आराम से आप देख सकते हैं। ये दो केसेस हो सकते हैं। ये जो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम है। तो अगर आप देखेंगे ये पी एस आर, ये एक ट्रायंगल है। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बेस जो है वो एस आर है, और पैरेललोग्राम की जो बेस है वो भी एस आर ही है। इसका मतलब है ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम इज ऑन द सेम बेस, इनकी जो बेस है वो सेम है। और अगर आल्टीट्यूड देखा जाए बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी ये सेम पैरेलल्स, ट्रायंगल जो है वो बिल्कुल पी क्यू और एस आर के अंडर ही है। तो इसमें कोई बिल्कुल फर्क नहीं है, ये दोनों जो है ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स ही है, यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही है। तो इसका मतलब है अब इनको हमने देखना है कि इनकी एरिया रिलेशन क्या है। इसी तरीके से आपके पास ये केस भी हो सकता है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ट्रायंगल ई डी ई सी, इसकी जो बेस है दैट इज डी सी, और पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उस पैरेललोग्राम की बेस जो है दैट इज डी सी। तो इन दिस केस द ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। इसको आप प्रोड्यूस कीजिए आगे, तो आपको पता चलेगा ये भी बिल्कुल सेम पैरेलल, ये उस पैरेलल जो पॉइंट ई जो है इट लाइज ऑन द लाइन ए बी इफ इट इज प्रोड्यूस्ड। तो अब तीसरा केस भी हो सकता है। आपके पास तीसरा केस जो होगा उसके बारे में भी हम यहां पे बात करेंगे, जैसे वो मैं आपको यहां पे ड्रा करके सिखाऊंगा। अगर आपके पास ऐसा पैरेललोग्राम है, फॉर एग्जांपल ऐसे आपके पास पैरेललोग्राम है, तो ऐसे आपके पास एक ट्रायंगल हो सकती है। तो ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दिस इज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो आप देखेंगे ये बेस जो है कि ये वाला साइड जो ये बेस है दोनों के लिए, और ये साइड जो है ये पैरेलल साइड्स है। तो ये तीन केसेस आपके पास हो सकते हैं। तो अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ट्रायंगल, दिस वेरी ट्रायंगल, एंड द पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ एरिया, इसमें क्या रिलेशन होगी? तो वो चीज हम कैसे प्रूव करेंगे? जैसे यहां पे क्या कर रहे हैं हम, यहां पे मैं ड्रा कर रहा हूं केस 1 के लिए। हम देखेंगे यहां पे जो केस 1 आपको मैंने दिखाया था, एक पैरेललोग्राम है यहां पे। लेट अस नेम दिस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एंड एस। Let us draw a diagonal like this. So what is this actually? Triangle PSR and parallelogram PQRS. These are two shapes which are on the same base SR and between the same parallels PQ and SR. ये बिल्कुल ये चीज है। अब what is the relation between? आपको पता है relation between, क्योंकि अभी हमने earlier जो हमने सीखा है, a diagonal divides the parallelogram into two triangles of equal area. तो हम ऐसा कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर जो है वो किसके बराबर है? वो इस ट्रायंगल के बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू, ये इसके बराबर है। और अगर हम देखेंगे एरिया आपका पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस विच इज इक्वल टू ये दोनों ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू, ये इन दो ट्रायंगल्स के बराबर है। तो अगर आप फिर से देखेंगे इन दो ट्रायंगल का एरिया जो है वो बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं जो पी एस आर ट्रायंगल है, पी आर क्यू को भी पी एस आर ही लिख सकते हैं क्योंकि एरिया बराबर है। तो ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर। तो दो बार हो गया, हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर। तो एरिया पैरेललोग्राम जो है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस वेरी ट्रायंगल। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये 2 जो है हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिवाइड होगा 1 पे, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है कि
अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस है एंड लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया से। तो इस तरीके से ये केस 1 था। तो आपके पास केस दूसरा भी हो सकता है, जैसे ये था, दिस वाज द फर्स्ट केस, ये वाला। अब अगर ये केस आपके पास है, क्या इस सूरत में भी ये कंडीशन होल्ड हो रही है? तो लेट्स ट्राई फॉर दिस आल्सो। इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। यहां पे एक यहां पे ड्रा कर रहा हूं पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस हम इसका नाम दे रहे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इसको प्रोड्यूस थोड़ा करेंगे और यहां से मैं कर रहा हूं ऐसे, इसको ज्वाइन कर रहा हूं यहां पे, और यहां पे ये ज्वाइन हो रहा है। तो लेट्स नेम दिस पॉइंट एज टी। तो अभी आप देखेंगे यहां पे पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड ट्रायंगल टी एस आर, these are the two figures or two shapes which are on the same base SR and lies between the same parallels PQ and SR. तो अब इनकी रिलेशन हमने देखनी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, वेदर देयर इज सम रिलेशन आर नॉट। तो आपको पता होगा द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या है, वो है हाई आल्टीट्यूड, क्योंकि आल्टीट्यूड क्या करेंगे हम यहां पे। अब इस ट्रायंगल का एरिया हमने कैलकुलेट करना होगा एस टी आर का। इसका जो आल्टीट्यूड हम यहां से ड्रा करेंगे तो विच लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, ये आल्टीट्यूड होगा इसका। तो आपको पता है कि उस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं जिसका आल्टीट्यूड आउटसाइड है, बिल्कुल फार्मूला वही है। तो वो हम करेंगे। अगर ये आप देखेंगे यहां पर हम लिखेंगे यू, इसका नाम देंगे हम। ये जो टी यू है इज आल्टीट्यूड। अगर आप गौर करेंगे बिल्कुल ये आल्टीट्यूड, ये हाइट बन जाएगी पैरेललोग्राम की भी, क्योंकि ये जो एस यू है दिस इज पैरेलल टू पीटी, ये पीटी के पैरेलल है। तो इस तरीके से अगर आप यहां पे भी ड्रा करेंगे एक आल्टीट्यूड, वो भी बराबर होगा टी यू के बराबर ही होगा। तो अभी आप देखिए यहां पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस जो है वो किसके बराबर है, एस आर इंटू हाइट। हाइट तो हम टी यू लिखेंगे, यहां पे हाइट हम टी यू लिखेंगे। तो अगर आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल टी एस आर विच इज बेस इसकी जो है दैट इज एस आर इंटू इसका आल्टीट्यूड है दैट इज टी यू और डिवाइड बाई 2, क्योंकि ट्रायंगल में डिवाइड बाई 2 हमने करना है, 1/2 बेस प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड आल्टीट्यूड। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये दोनों चीजें जो है ये इसका हाफ है, यानी एरिया पैरेललोग्राम यहां पे जो दुगना है इससे आ रहा है। तो हम यहां पे कहेंगे 2 टाइम्स, या हम ऐसे कर सकते हैं 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये चीज हम यहां पे अक्स किया है। सो दिस वाज द केस सेकंड, दिस वाज द केस सेकंड। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है कि अगर आपके पास दो फिगर्स है दैट इज पैरेललोग्राम एंड अ ट्रायंगल which are on the same base and lies between the same parallels, तो इनका जो एरिया होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा, that will be half of the area of पैरेललोग्राम। तो ये चीजें हमने इसमें सीखी है। तो अब इसके बाद और हमारे पास एक केस है, जैसे अभी तक क्या हमने पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स और इनकी एरिया रिलेशन, ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स और इनकी रिलेशन। Now we are going to learn about two triangles on the same base between the same parallels. तो क्या करेंगे हम यहां पे दो पैरेलल लाइंस हम ड्रा करेंगे। यहां पे मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं यहां पे एक केस। अगर आप यहां पे देखेंगे ये जो लाइन है दिस लाइन AD इज पैरेलल टू BC, तो ये जो ट्रायंगल है दिस वेरी ट्रायंगल एंड दिस वेरी ट्रायंगल, दीज टू ट्रायंगल्स आर द सेम बेस। तो these two triangles we call them, these are the two triangles which are on the same base and lies between the same parallels. Similarly here in this case QR is the base for both triangles SQR and PQR. So in this case both the triangles are on the same base and lies between the same parallels. So what is the area relation between these two triangles? So let us try to find if there is some relation. Let us name this triangle A, B, C and D. We have to find the relation between the area of these two triangles. Let us suppose
So let us name this point E and this point as F. We know that the area of triangle ABC, which is equal to half of the product of base and altitude. So हम ऐसे लिख सकते हैं area of triangle ABC, which is half of the product of base, that is BC, into altitude, that is AE. तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, which is also half of the product of base is again BC because same base, into altitude. altitude ये यहाँ पे है, D आप इसको कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि AD जो है वो BC के पैरेलल है तो DF बिल्कुल AE के बराबर होगा, तो यहाँ पे आप इसको AE लिख सकते हैं. तो इस तरीके से we have observed that the area of these two triangles is also equal. Similarly, if you have two triangles like this way, one whose altitude lies outside the triangle and another whose altitude lies inside the triangle, or maybe one of the sides is altitude. So in the same way you can prove that the area of these two triangles is also equal. So these are the concepts which we have learned today. Today in this class, that is, we have learned first concept, that is the median divides the triangle into two triangles of equal area, and parallelograms, two parallelograms on the same base between the same parallels are equal in area. A parallelogram and a triangle, if these are on the same base and between the same parallels, the area of the triangle is half of the area of the parallelogram. And the next point, two triangles which lies on the same base, which lies between the same parallels and on the same base, are equal in area. Thank you.